Narayan. In this video, I have picked up a question from Srimad Bhagavad Mahapuran, and this also again is a very popular subject which is being discussed in casual gatherings, which is discussed in families and in among lots of communities. And people seldom have the right conclusion. They have never arrived at the right conclusion, but they all have a mix of conclusion, which is of their own understanding, of the modern understanding. So this particular question is being asked by Parikshit to Sukdev, and this question comes exactly after the end of the Rasa play, the description of the Rasa play of Sri Krishna with the gopis, and then Parikshit puts up a question to Sukdev for the enlightenment of all of us, because he knew that people of Kali Yuga will uh, want to know the real fact about this particular event, because they could be this event could be completely misconstrued in a way which would actually instill a lot of hatred towards God and hatred towards Krishna, one of the incarnations of Narayan. So Parikshit, after the end of the Rasa play, he puts up a question to Sukdev, and he says that it is, in fact, it was in uh, the interest of dharma and to suppress adharma that Sri Krishna incarnated in the womb of the human species. So why did he, who is the promulgator, the institutor, and the conservator of dharma, commit such a sinful act of playful dalliance with others' wives? Why did he do so? Please dispel this doubt of mine, because I am unsure of this particular event where I could be taken to a wrong way of interpreting the event, which might be something else. So Sukdev answers it beautifully, and I will just tell you in English that he tells that the violation of dharma and over boldness is observed in some powerful gods or mighty people, and the sins do not attach to them. Just as Agni Dev is a mighty god, he also eats what is forbidden food. Suppose we could say that he eats human corpses, human dead bodies. He eats human dead bodies. He eats a lot of dead bodies in a fire forest conflagration. So he eats a lot of dead creatures, which is unwholesome food. But the wholesome food, according to the scriptures, is ghee, go grit. So the cow's ghee. This is the best food that Agni must have. But he also eats human bodies. So sin, but still, if he eats human bodies, the sin does not attach to him, because he is absolutely powerful and he is above the bounds of karma. So the explanation of Sukadev is with the example of Rudra. He gives one example of Rudra. He says that no other human being or even God other than Rudra is capable of drinking and consuming poison during the halahal during the Samudra Manthan. So if a and common man goes up to drink poison, he would not survive. He would die instantly. So it is only Rudra who is capable of such a daring act, and the impact of that act would actually be consumed by him, would not trouble him. So in this way, he says that Sri Krishna was not bound by his own karma. So only the precepts of the authoritative, precepts of the powerful and the mighty gods is termed as authoritative. We must only do as they say, as they inform us and instruct us to do. We must not imitate them in all their ways. Imitating them might be only fruitful in only on rare occasions. Imitating their good deeds, which are within the control of our own self, must be imitated, but we must not imitate them wholly and fully. And we must be fully aware of the precepts, the counsels, and the instructions they give us for all of us, for the benefit of all of us. So that instruction, the precepts which are being elaborated in the scriptures of the gods, must be held as authoritative for us, not their deeds. Because if we
commit the same deeds, we are bound by our karma, we are bound by our prarabdha, our providence. Whereas Krishna, Sri Krishna, when he deals with others, he is not bound by his karma. He is always situated in Brahma. He does not have that meaty, that he does not have that sense of identity with his own body. We all have the sense of identity with our own body. We consider our body as our soul, whereas Sri Krishna does not consider his body as his soul. He is the indweller of all the creatures, all the jivas. So this is to be understood in this way. And then he goes on to say that when his devotees, Sri Krishna's devotees who have acquired union with him through dhyana yoga, some have acquired union with him through their identity with the universal spirit. They consider themselves as Brahma, and then that is how they have acquired Krishna. And some have acquired Krishna through the means of bhakti, by uh, worshipping his lotus feet. So if these people, even these people, when they perform certain acts, they are without their ego. And when these people perform their acts, and also they refrain from performing their acts, they are not attached to the results of those actions as well as their inactions. So if such the karmas are so far away from even these people, the devotees of Krishna, so how much more it should be applicable to Sri Krishna, who is the indweller of all these beings. So none of the karmas can actually touch Sri Krishna. He is not bound by his karmas. And since Sri Krishna is the indweller, he is the supreme soul, he resides also in the gopis, he resides in the husbands of those gopis, and he resides in all the creatures. All the husbands actually, through his own Maya, took their wives to be by their side. So there were two wives, two women, you could say, duplicates of those wives. One, the original ones, or you could say, one part of those, the wives of the husbands were with their husbands only, and the other part of that wives were with Sri Krishna in the rasa play. They were dancing and enjoying, and they were completely absorbed in the thoughts of Krishna alone. And it is, see, Sri Krishna voluntarily incarnates and voluntarily chooses a pair of parents to take birth in, and he voluntarily chooses the time and place to take birth. So if he chooses to take birth in a certain place and a certain time and a certain parents, how can he be such weak that he can be enamored of all the gopis? He can be captured and he can be subjected to the charms of the gopis. He can never be subjected to any woman, because he himself in Srimad Bhagavad Mahapuran asserts that woman is the deluding potency that I have created. And woman is a deluding potency in the sense that woman is itself is actually the one who, uh, you could say, obstructs the path of men towards liberation. So it is ideal for men who wants to achieve liberation, who wants to ensure that this will be their last incarnation, last uh, birth. They want to get rid of this transmigration. They must overcome the biggest maya, which is woman. They have to overcome woman, and then only they can actually proceed towards moksha. So woman is the biggest deluding potency, as being asserted by Sri Krishna himself. And he himself in the Bhagavad Puran again says that it was to instill extreme devotion in the hearts of the gopis for me that I aroused so much love in them through the means of rasa play. And then quickly I departed to Mathura and I never came back. And that is how they remained engrossed in my thoughts. And that is how, in the end, because they remain engrossed in my thoughts for a long, long period of their lives, in the end, at the last moment of their life, they actually remember only me. And that is how they achieved Golok, my eternal realm, where they all are presently residing. And that is how they actually got rid of their transmigration, the cycle of birth and death. So it has a very, very subtle meaning. So
Narad Muni also explains it to Yudhishthir in the Bhagavad Puran also, that there are 5 means of dissolving oneself in the thoughts of Krishna. One is concupiscence, which is the gopis. The gopis achieved Golok by the means of love, lust, you could say, concupiscence, because it were women, and woman had only one means to get lost in Krishna, and that was by the means of lust. So he aroused love in them, and that is how they all acquired Golok. Kansa acquired Sri Krishna by the means of fear. He was so fearful that he only thought of Krishna every waking, even sleeping moments. And third was Shishupal. Shishupal acquired Sri Krishna by the means of hatred. He hated him so much that he only thought of Krishna by hating him. And then fourth is the Pandavas. They acquired Sri Krishna by the means of kinship, by being relatives of Sri Krishna, by familial ties. And the last one is bhakti. Bhakti, or you could say dhyana yoga. All the rishis and the saints, they all acquired Sri Krishna by the means of devotion and by the means of dhyana yoga, and by the means of assuming themselves as indifferent from the universal spirit, which is Sri Krishna himself. So this is Narada Muni's conclusion, and one of the means of absorbing oneself into the thoughts of Krishna is concupiscence, which is called as lust. And this, in the case of gopis, they acquired Golok by the means of lust, that is concupiscence. So this is the real meaning of this explanation that Sukadev actually explains it to Parikshit, and he deciphers the intent and the real crux, the real essence of the rasa play, which Sri Krishna performed with thousands and thousands of gopis. So this is the real story of this particular event. ये जो इस वीडियो में मैंने ये प्रश्न लिया है, इस बार मैंने ये प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है और भागवत पुराण से लिया है, और इसमें परीक्षित राजा सुखदेव को प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न तभी आता है जब भी रास जो कृष्ण भगवान का रास लीला होती है वह समाप्त हो गई, उसकी जो चर्चा होती है, उसका वर्णन होता है, वो समाप्त ही हुआ होता है। उसके तुरंत बाद पहला प्रश्न परीक्षित का यही आता है सुखदेव को। सुखदेव को पूछा जाता है परीक्षित द्वारा कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण ने श्री कृष्ण अवतार लिया है धर्म की स्थापना हेतु और अधर्म को परास्त करने के लिए, तो नारायण जो है वह श्री कृष्ण के रूप में जो धर्म के वक्ता भी है, धर्म के कर्ता भी है और धर्म के रक्षक भी है, तो उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया कि दूसरों की पत्नियों के साथ उन्होंने रास लीला रचाई? तो ये तो अधर्म देखा जाना चाहिए। तो ऐसा अधर्म भगवान ने क्यों किया? ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपा करके ये जो मेरा संशय है, मेरी शंका है इसके प्रति, वह कृपा करके दूर कीजिए। कदाचित मैं ही समर्थ नहीं हूं इसको समझने में। और सुखदेव बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं। वह कहते हैं कि जो ईश्वर होते हैं और बहुत महान मनीषी होते हैं, कोई देव होता है, तो ईश्वर और देव ये कभी-कभी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कभी-कभी धर्म का अतिक्रमण करते हैं और बहुत ही साहस दिखा देते हैं। धर्म के अतिक्रमण करने के बाद फिर भी जो धर्म के अतिक्रमण करने के बाद जो उन्होंने चेष्टा की होती है, उनका पाप उनको नहीं लगता है। वैसे ही जैसे अग्निदेव, अगर अग्निदेव को हम देखें कि अग्निदेव का श्रेष्ठ भोजन जो है वो गोघृत है, गाय का घी, जो हम यज्ञ में देते हैं, स्वाहा स्वाहा करके सब देवों को आहुति देते हैं, ऋषियों को देते हैं, तो वो जो घृत है वो अग्निदेव ग्रहण करते हैं, वो उनका श्रेष्ठ भोजन है, उनको सबसे प्रिय है। मगर अग्निदेव को हम देखते हैं कि घी तो ग्रहण करते ही है, मगर घी के साथ ऐसे भी वह भोजन ग्रहण करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। जैसे मनुष्य का शरीर हो, अगर कोई जंगल में आग लग गई हो तो वहां पर जो पशु पक्षी भी मर जाते हैं, तो वो भी अग्निदेव ही भक्षण कर लेते हैं। तो जो नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वो भी खा लेते हैं। मगर फिर भी अग्निदेव का जो स्टैंडर्ड है या उसका एक स्थान है, वो नीचे नहीं गिरता है। और ये जो क्रिया उन्होंने की है
कि जैसे मनुष्य शरीर को भी वो भक्षण कर लेते हैं या दूसरे जीवों को, तो उनका जो पाप है वो उनको नहीं लगता है, क्योंकि वह अग्निदेव है, वह कर्म से पृथक है। जो कर्म करते हैं वो पृथक है उनसे, कर्म के बंधन में नहीं है। तो यहाँ पर यही सुखदेव कहते हैं कि जो ईश्वर होते हैं, ईश्वर अवतार लेते हैं, अपनी स्वीकृति से अवतार लेते हैं, और जो महान मनीषी होते हैं, जो देव होते हैं, वह कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। अगर वह रुद्र भगवान का एक उदाहरण देते हैं कि रुद्र भगवान के अलावा अगर कोई विष पीने जाए, हलाहल, जो समुद्र मंथन के पहला ही जो निकला था समुद्र में से पहला पदार्थ, तो वो अगर हम कोई सामान्य मनुष्य पीने जाए तो वो तो मर ही जाएगा, मगर रुद्र के सिवाय और कोई था ही नहीं, और कोई कर भी नहीं सकता है। तो ऐसी चेष्टा रुद्र को ही शोभा देती है। तो उनको देखते हुए अगर हम कोई सामान्य मनुष्य अगर अपने आप को बहुत शक्तिशाली मान के शक्तिशाली ईश्वर का और देव का कोई अनुगमन करने लगे कि अगर उन्होंने किया तो मैं भी करूं, केवल और केवल अज्ञानवश के मैं भी महान हूं, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं, और वो कर दे, तो वो नरक में ही जाएगा। तो जो कार्य जो महान मनीषी को, ईश्वर को शोभा देती है, वह मनुष्य को शोभा नहीं देती है। तो मनुष्य को सबसे अधिक उचित है कि वह सभी जो ईश्वर के जो कार्य है वह उनका अनुगमन न करे, उनको इमिटेट न करे। उनका यहाँ पर सुखदेव कहते हैं कि जो ईश्वर का जो सबसे बड़ा, हमारे लिए ईश्वर सबसे प्रधान कैसे मानने चाहिए कि ईश्वर जो हमको आज्ञा देते हैं, वह सलाह देते हैं, शास्त्र के द्वारा जो हमें उपदेश देते हैं, वो ही हमारे लिए श्रेष्ठतम कार्य माना जाना चाहिए। हमारे लिए सभी कार्य वही श्रेष्ठ है जो ईश्वर स्वयं हमें उपदेश के द्वारा देते हैं, शास्त्र के माध्यम से। वो जो करते हैं, ईश्वर जो जो लीलाएं करते हैं, वो हमें अनुगमन उसका नहीं करना चाहिए, बहुत ही कम। जैसी अगर हमारे सामर्थ्य में हो, अगर छोटी छोटी अच्छी वाली जो हो, ईश्वर जैसे ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, या कोई शिव मंदिर में जाकर श्री कृष्ण भगवान जल चढ़ाते हैं, वह बहुत सारा व्रत उपवास करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, जैसे अमरीश राजा एकादशी का व्रत करते हैं। तो वैसे महान मनीषी जो छोटे छोटे कार्य है उनका अनुगमन अनुगमन अगर हम करें तो ठीक है। बहुत ही कम कार्य ईश्वर के हमको इमिटेट करनी चाहिए, अनुगमन करना चाहिए। वरना वो जो बोलते हैं, वो जो कहते हैं, वो जो हमें ज्ञान देते हैं, हमें उपदेश देते हैं, उसको ही हमको सर्वस्व मानना चाहिए और उसका ही हमको पालन करना चाहिए। फिर सुखदेव आगे कहते हैं कि जो निरअहंकारी लोग होते हैं, वो जो भी चेष्टा करते हैं, जो भी कार्य करते हैं और जो कार्य नहीं करते हैं, तो उन दोनों का जो फल होता है वो उनको नहीं लगता है, क्योंकि वो निरअहंकारी है, उनमें देह भाव ही नहीं है। वो देह भाव से ऊपर उठ के वो ब्रह्म में ही लीन होते हैं। तो अगर ऐसे महान ऋषि भी कहे कि यार, महान भक्त कहे जैसे प्रहलाद इत्यादि, तो वो उनको भी जो देह भाव में नहीं होता है और फिर भी जो जो कार्य करते रहते हैं, तो वो जो छोटे छोटे कार्य भी उनको बांधते नहीं है, कर्म उनको बांधते नहीं है। तो अगर ये छोटे छोटे भगवान के भक्तों को भी अगर बड़े बड़े कार्य अगर वो कर लेते हैं, छोटे कार्य बड़े कार्य उनको वो बांधते नहीं हैं, क्योंकि वो देह भाव में नहीं होते हैं, तो भगवान की तो क्या बात ही की जाए। भगवान तो जब अवतार भी लेते हैं तो वो स्वयं चयन करते हैं कि मैं ये माता पिता के घर में ही उत्पन्न होगा, इसी समय पे, इसी स्थान पे। तो स्थान भी उनका चयन करते हैं, समय उनका चयन करता है। माता पिता उनको बुलाते हैं कि भाई आप ईश्वर, आप हमारे घर पे संतान बन के आइए, पुत्र बन के आइए। तो ये भगवान की ही लीला देखी जानी चाहिए। अगर भगवान स्वयं ही ये सब निर्णय करके अवतरित होते हैं, तो सुखदेव पूछते हैं कि भगवान गोपियों से कैसे मोहित हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और हमें इसको गहराई से सोचना पड़ता है, और ये एक दो प्रश्न में ही इसका उत्तर मिल जाता है कि भाई भगवान तो स्वयं सर्वशक्तिमान है, उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, तो वो गोपियों के चपेट में कैसे आ सकते हैं। फिर सुखदेव कहते हैं कि जैसे
भगवान के भक्तों ने, किसी ने भक्ति के मार्ग से उनके चरणाविंद को अपना सब कुछ मानते हुए उन्हीं की सेवा करके उनको प्राप्त किया है भगवान को। किसी ने ध्यान योग से प्राप्त किया है कि वो और भगवान एक ही है, ऐसे ध्यान योग से भगवान को प्राप्त किया है। और किसी ने अपने आप को ही ब्रह्म मानकर ऐसा भगवान को प्राप्त किया है। तो अगर ऐसे ऐसे महान लोग भी अगर भगवान को प्राप्त करके उनके जो कार्य अकार्य होते हैं, कर्म अकर्म, तो उनको भी कुछ वो कर्मों का या कर्म न करने का फल नहीं मिलता है, छू भी नहीं सकता है, तो भगवान की तो कुछ बात ही नहीं की जा सकती है। जो भगवान इन सभी के भीतर है। फिर सुखदेव कहते हैं कि जो गोपियों के भीतर जो है, जो आत्मा स्वरूप है, वो भगवान ही है। गोपियों के जो पति थे, तो उनके अंदर भी भगवान है। और तो और भगवान तो सभी जीवों के मूल में है, सभी जीवों के हृदय में बसे हुए हैं, सभी जीव के। और भगवान सभी के मन के साक्षी भी यहाँ पर कहे गए हैं। तो भगवान अगर सभी के हृदय में बसते हैं तो भगवान ने ही ये चेष्टा की है, उन्होंने ही अपनी स्वीकृति से यहाँ पर अवतार लिया है। क्योंकि क्योंकि वह स्वयं ऐसा चाहते थे कि रास लीला और बहुत सारी अलग अलग लीलाएं करके मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मेरे जो भक्त है मेरा मेरा अनुगमन कर सके, मुझे याद कर सके और मेरे ही स्मृति में खो जाए। और मेरी स्मृति में खो जाने से क्या होता है कि वह फिर कृष्णमय हो जाते हैं। कृष्णमय हो जाने से क्या होता है कि उनको फिर धीरे 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 वह देह भाव से उठने लगते हैं, उनका हृदय पवित्र होने लगता है और वो शुद्धिकरण उनका होने लगता है। फिर वह केवल और केवल सत्य पर आ जाते हैं और फिर धीरे 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 जैसे जीवन आगे बढ़ता है तो वो उनके सभी जो उनके विकार जो होते हैं, काम क्रोध मोह लोभ, उनसे सब वो मुक्त हो जाते हैं और वो एकदम पवित्र हो जाते हैं। और अंत में जब उनकी मृत्यु आती है, जब भी अंत में अंतिम क्षण होता है, तभी उनको श्रेष्ठ कृष्ण भगवान ही याद आते हैं। तो अंतिम क्षण में याद आने से फिर क्या होता है कि वह तुरंत ही गोलोक में प्रस्थान करते हैं और फिर वह जो जीवन मरण का जो चक्कर है उससे वह संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। तो इसी कारण से भगवान ने ये सब रास लीलाएं रची थी। और भगवान की ऐसी माया, यहाँ पर सुखदेव कहते हैं कि ऐसी माया थी कि गोपियों के जो पति थे वो तो अपने अपने घर पे थे, मगर माया ऐसी थी कि पतियों के पास उनकी पत्नी वहीं पर थी और पत्नी का एक रूप वहां पर उनके पास था, समक्ष था। तो पतियों को तो ऐसा ही था कि मेरी पत्नी मेरी सेवा कर रही है घर में, और उनका और एक अंश जो कृष्णमय हो चुकी थी, कृष्ण में खोना चाहती थी, तो वो सभी रास में रमी हुई थी, रास लीला में खेल रही थी कृष्ण भगवान के साथ में। तो ये भगवान की माया है। अगर भगवान स्वयं अवतार ले सकते हैं, सब कुछ अपने आप कर सकते हैं, तो ये प्रश्न सभी को, ऐसे लोगों को पूछना चाहिए जो इस पर बहुत बड़ी बड़ी टिकाएं करते हैं कि अगर भगवान स्वयं स्त्री को भी उत्पन्न कर सकते हैं तो भगवान ऐसी ऐसी सुंदर गोपियों से हार कैसे जाएंगे, वह काम के वश में कैसे आ सकते हैं। और यहाँ पर भगवान का सबसे बड़ा पुत्र प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न है वह कामदेव ने पुनर्अवतार लिया है, तो भगवान का पुत्र काम है। और जो पुत्र होता है वो पिता के अधीन होता है। तो ये इसका एक रूपक है कि भाई भगवान भी काम से बड़े हैं, काम तो उनका छोटा सा पुत्र है, भगवान जो कहेंगे वो काम करेगा, तो काम उनको अपने वश में ले ही नहीं सकता है। तो ये सब रूपक के रूप में शास्त्रों द्वारा ये हमें रहस्यमय ज्ञान दिया है कि जिससे हम ये सब समझ सके और हम भगवानमय हो सके। और एक मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ कि नारद मुनि ने भागवत पुराण में ही नारद मुनि युधिष्ठिर का संवाद है, उसमें नारद मुनि स्वयं कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के 5 कारण होते हैं, उसमें से एक होता है काम, और गोपियों ने काम के द्वारा भगवान को प्राप्त किया है। तो ये जो काम का है, ये काम को जगाने के लिए ही रास लीला की रचना की गई थी कि गोपियों में इतना काम बढ़ जाए कि प्रेम। और ये काम को हमें ऐसे नहीं देखना है कि हम
निम्न कक्षा का काम नहीं देखना है कि जो स्त्री पुरुष के केवल शरीर गमन का काम, वो काम नहीं देखना है, हमें प्रेम देखना है। प्रेम ऐसा होता है कि वह उससे ऊपर उठा हुआ होता है। प्रेम का अर्थ होता है समर्पण। सच्चा प्रेम वही है जहां पर समर्पण है। जहां पर समर्पण नहीं है, आप मान लीजिए सच्चा प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम और समर्पण दोनों साथ ही जाते हैं। आजकल का प्रेम तो समर्पण बिना का है, मगर फिर भी लोग कहते हैं कि प्रेम है। वो प्रेम है ही नहीं, वो केवल एक दिखावा है। प्रेम का अर्थ होता है समर्पण, संपूर्ण समर्पण। जैसा पुरुष धर्म को समर्पित है और उसकी पत्नी उसके पति को समर्पित है, उसी को सच्चा प्रेम कहा जाता है। और यहाँ पर जो अवधि लिखी गई है, सुखदेव कहते हैं कि जब काम ये रास लीला समाप्त हुई, ब्रह्मा रात्रि लिखा हुआ है, ब्रह्म रात्रि। अभी एक ब्रह्मदेव की एक रात्रि माने एक पूरा परार्ध निकल जाए, एक कल्प निकल जाए पूरा। तो एक कल्प तक ये रात्रि ये लीला चलती रही। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जो गोपियां थी इतनी तन्मय थी कृष्ण भगवान के साथ रास लीला में कि उनको पता ही नहीं चला कि इतना समय बीत गया। इसका अर्थ ये एक ऐसा होता है। और दूसरा अर्थ ये भी हम मान सकते हैं कि उसके जो गोपियां जो अंश रूप में थी, वह उनके साथ में सही में एक कल्प पर्यंत रास लीला के आनंद में डूबी रही, जहां पर केवल और केवल प्रेम था, उच्च कोटि का प्रेम। प्रेम ऐसा कि समर्पण से भी परे, समर्पण से भी बहुत ऊंचा। समर्पण तो है ही, मगर समर्पण आप संपूर्ण समर्पण मान सकते हैं प्रेम को। ऐसा उच्च कोटि का पवित्र प्रेम था। तो ये पवित्र प्रेम को जगाने के लिए रास लीला की रचना की गई थी। और इसके बहुत ही गूढ़ रहस्य है जो मेरे गुरुदेव शंकराचार्य पुरी ने भी एक वीडियो में कहे थे। वो वीडियो मैं यहाँ पर लिंक करूंगा, आप उनको भी देख सकते हैं। बहुत ही सार गर्भित वीडियो है कि रास लीला का एक्चुअल रीजन क्या था और एक्चुअल महत्व क्या था, उसका क्या था सार। उसको समझने के लिए बहुत ही आपको एक दो बार सुनिएगा तभी आपको पता चलेगा। बहुत ही गूढ़ रहस्यमय ज्ञान है रास लीला का। और भागवत पुराण में तो बहुत संक्षिप्त में दिया है, मगर गुरुदेव के माध्यम से बहुत विस्तार से पता चलता है कि रास लीला का पवित्र स्वरूप क्या था। लोग इसको बहुत ही अभद्र दृष्टि से देखते हैं, तो उनकी दृष्टि में ही दोष है। तो ऐसे लोगों की कभी सुनिएगा नहीं। केवल और केवल शास्त्र और शास्त्र को पढ़े हुए गुरु, और गुरु जो बोलते हैं वो शास्त्र के अलावा और कुछ न बोलते हो, ऐसे ही गुरु का सानिध्य आप प्राप्त करें, वहीं से आपको रास लीला की महिमा पता चलेगी। और ये अंत में सुखदेव परीक्षित को कहते हैं कि ये रास लीला का मुख्य उपदेश ये था कि लोग इसको पढ़े, लोग गोपियों के प्रेम को, गोपियों के जो समर्पण वाला प्रेम है भगवान कृष्ण के लिए, उसको पहचाने। और उसके माध्यम से फिर पुरुष है वह संपूर्ण रूप से काम से मुक्त हो जाए। जो काम है वह बहुत बड़ा मन का विकार, यहाँ पर सुखदेव ने कहा है। तो काम से मुक्त होने के लिए रास लीला का एक महात्म्य अगर उनको पता चल जाए तो वो काम से भी मुक्त हो सकते हैं। तो इतनी बड़ी महिमा रास लीला की है, जो आजकल लोग अभद्र दृष्टि से देखते हैं और शास्त्रज्ञ ज्ञान के दृष्टि से नहीं देखते हैं, दर्शन फिलॉसफी की दृष्टि से नहीं देखते हैं, और विज्ञान की दृष्टि से भी नहीं देखते हैं, व्यवहार की दृष्टि से भी नहीं देखते हैं। तो ये तीनों को सामंजस्य मिला के शंकराचार्य पूरी के है, वह तीनों को सामंजस्य मिला के वह दृष्टि से आपको रास लीला का महत्व बताते हैं। तो ऐसे ही अगर वीडियोस आपको पसंद है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। गोवर्धन मठ नाम की एक सुंदर चैनल है यूट्यूब पर, आप उसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसको अगर आप सुनेंगे, उसमें से आपको सीधा सीधा शास्त्र का ही ज्ञान मिलेगा। अगर आप उनको सुनते हैं, जीवन में उतारते हैं, चरितार्थ करते हैं, तो आपका धीरे धीरे कल्याण जल्दी चालू हो सकता है। शिव शंकर प्रलयंकर।